السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج دوحہ میں قطر کے امیر سے ملاقات کے دوران منگل کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی پاکستان کی طرف سے پرزور مذمت کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے قطر کو اسرائیل کی بلا جواز اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں پاکستان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا یقین دلایا ہے۔ صدر مملکت کل سے چین کا 10 روزہ دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں 30 سے زائد مشنز کے سفارتکاروں نے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان اور عراق نے دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان آپریشنل تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سندھ حکومت اساتذہ کو جدید تدریسی طریقوں سے روشناس کرانے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی آن لائن تربیتی پروگرام کا آغاز کرے گی۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 77ویں برسی منائی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ غزہ پر آج اسرائیلی فوج نے وحشیانہ حملوں میں مزید 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کے درمیان ابوظہبی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی کھلی جارحیت کو روکنا ہوگا اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات آج قطر کے اپنے سرکاری دورے کے دوران دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی عوام اور قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ انتہائی خوشگوار ملاقات کی۔ شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے منگل کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت اور عوام برادر ملک قطر کے خلاف اس حملے سے سخت مضطرب ہوئے ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک مشکل کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائی چارے کے جذبے کے تحت قطر کے امیر شاہی خاندان اور برادر عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ انہوں نے قطری قیادت کو اس بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اور گھناؤنے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے ذمہ دارانہ تعمیری اور مصالحتی کردار کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کی جارحیت پر مبنی ایسی کارروائیوں کا مقصد واضح طور پر علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے جو جاری سفارتی اور انسانی کوششوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ وزیر اعظم نے اس سال بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان کے لیے قطر کی بھرپور حمایت پر بھی امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر کے امیر نے اس موقع پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کے پرخلوص جذبے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم قطر کا 1 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ قطر میں اسرائیلی حملوں کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ یہ اجلاس پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد عبد الرحمن الثانی نے نیتن یاہو کی اس کارروائی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے اپنے ملک کے خلاف ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ ادھر 2 روزہ ہنگامی عرب اسلامک سربراہی کانفرنس بھی اتوار سے دوحہ میں شروع ہو رہی ہے۔ سربراہی کانفرنس میں دوحہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں صورتحال پر غور ہوگا۔
صدر آصف علی زرداری کل سے چین کا 10 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر چینگڈو، شنگھائی، شینجیان اور ایگور کے خود مختار علاقے کا بھی دورہ کریں گے اور صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ بات چیت میں اقتصادی اور تجارتی تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مستقبل میں روابط کے لیے اقدامات پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان چین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فریق اینڈ کثیر جہتی فورمز پر دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں کی روایت کا تسلسل ہے، جو اپنی سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اسلام آباد میں تعینات 30 سے زائد غیر ملکی مشنز کے سفراء اور سینئر سفارتکاروں کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں NDMA کا دورہ کیا۔ ترکی، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، پولینڈ اور آئرلینڈ سمیت کئی بڑے ممالک کے سفراء اور نمائندوں نے اس سیشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر NDMA کی ٹیم نے سیلاب زدہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں کے بارے میں وفد کو جامع بریفنگ دی۔ سفارتکار برادری کو مانسون کی بارشوں کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے NDMA کی مؤثر حکمت عملی کے بارے میں بتایا گیا۔ شرکاء نے NDMA کے اقدامات کو سراہتے ہوئے انہیں انسانی جانوں اور معیشت کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی استعداد کار مستحکم کرنے میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ جلال پور پیروالا شہر کو بہترین انتظامات کے ذریعے سیلاب سے بچا لیا گیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں 4000 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ محمد والا شیر شاہ میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل ہمارے نمائندے رضوان عباس سے۔ پور میں ایمپس برج کے مقام پر پانی کی سطح 13 فٹ سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اسلام ہیڈ ورکس پر 1,20,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلاب کے باعث بہاولپور کے دریائی علاقوں ماری قاسم شاہ، موضع باقرپور، بستی ساحلہ، موضع اٹھار، شریف، سما سٹا، لال سہاندرہ، احمد پور شرکیہ، خیرپور ٹامے والی اور حاصل پور کی متعدد بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ ان علاقوں میں ضلع انتظامیہ بہاولپور، ریسکیو 112 اور پاک فوج اور دیگر اداروں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ضلع بہاولپور میں 27 ریف کیمپس کے علاوہ میڈیکل اور ویٹرنری کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 26 کلینک آن ویلز گاڑیاں بھی سیلاب زدہ علاقوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح ضلع بہاول نگر میں ہیڈ سلمانچی کے مقام پر پانی میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس وقت 1,24,000 کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں دریائے سندھ میں 7 لاکھ سے زائد کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جہاں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ پنجن سے تقریباً 6 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلاب کے بعد ضلع رحیم یار خان میں 56 سے زائد مواد متاثر ہو چکے ہیں۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور اس وقت سیلاب سے سزارہ متاثر ہوئی ہے اور وہاں ضلع انتظامیہ، رحیم یار خان، پاک فوج، ریسکیو 112 اور دیگر اداروں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور ڈرون کیمروں سے بھی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع بہاول نگر میں چیک لالیکا کے قریب سیلاب زدگان کو لے جانے والی کشتی الٹنے کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آج جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے حکام کو 2 لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ جاری آپریشن کے دوران تمام ضروری احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں۔ شہباز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے سے بھی کہا کہ وہ انتہائی چوکس رہیں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے ضلع محمد کے علاقے گلونوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ فورسز نے خوارج کے مقام پر مؤثر کارروائی کی اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی حمایت یافتہ 14 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک اور کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کی گئی، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں مزید 4 خوارج مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع بنوں میں بھی ایک مقابلے میں ایک اور خارجی کو جہنم واصل کیا۔ بھارت کے حمایت یافتہ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جو ان علاقوں میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔
बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज मनाई गई। तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदा नबीला शाहीन की इस रिपोर्ट में। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज इस अहद के साथ मनाई गई कि उनके इत्तेहाद, तंजीम और ईमान के सुनहरी उसूलों पर अमल किया जाएगा। दिन का आगाज मसाजिद में उनके इसाले सवाब और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल 1948 में आज के रोज वफात पा गए थे। रेडियो पाकिस्तान कायदे आज़म की लाजवाल मीरास को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स भी नशर कर रहा है। उधर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के 77वें यौम वफात पर उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर अपने पैगाम में सदर ने कहा कि तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का क़याम एक तारीखी और अटल फैसला था। वजीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आज़म तारीख के उन अजीम रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद अपनी सियासी बसीरत और कायदाना सलाहियतों के जरिए मुसलमानाने बरे सगीर के लिए अलग वतन हासिल किया। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने रियासत पाकिस्तान की बुनियाद मजहबी आज़ादी, मुसावी बुनियादी हुकूक, जमहूरियत, इंसाफ और तमाम मजहबी अक़लियतों के लिए बराबरी के तयशुदा उसूलों पर रखी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना के अरकान के हमरा बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे फ़हीम उर रहमान सुमरो की इस रिपोर्ट में। आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और बाबाए कौम को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन और सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की व इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी की मुनासबत से कुरान ख्वानी की गई। इसी तरह शहर भर में मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी, समाजी इदारों में बाबाए कौम की बरसी की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। सिंधवी ने मनशियात के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म को कौमी तरजीह करार दिया है। वो मुत्तहिदा अरब अमारात के इंसदाद मनशियात के कौमी इदारे के चेयरमैन शेख ज़ैद बिन हमदान अल नहयान से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। फ्रीकैन ने इंसदाद मनशियात की कोशिशों पर तफसीली बातचीत की और मनशियात के स्मगलिंग के इंसदाद के लिए ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। शेख ज़ायद को मुत्तहिदा अरब अमारात की नई कायम करदा नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस अथॉरिटी के क़याम से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मनशियात के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को नुमायां तौर पर फ़रोग़ मिलेगा। शेख ज़ैद बिन हमदान अल नहयान ने इंसदाद मनशियात की कार्रवाइयों में पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कारोबार के लिए साज़गार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात शेवरॉन पाकिस्तान के CEO और कंट्री चेयरमैन अहमद जाहिद से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। शेवरॉन के जारी ऑपरेशन और पाकिस्तान में मुस्तकबिल की सरमायाकारी के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तानी मईशत पर कंपनी के एतमाद और मुल्क के तेल के शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने में इसके किरदार को सराहा। तीसरी पाकिस्तान हज और उम्रा नुमाइश 2025 के आगाज से कबल तकरीब आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हुकूमत इस साल आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब में भीख मांगने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान हज और उम्रा नुमाइश 2025 हज की मईशत के लिए मुल्क का पहला और वाहिद तिजारती और बरामदी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान हज और उम्रा नुमाइश 2025 रवां साल अक्टूबर में होगी।
इराकी फ़िज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ पायलट मोहनद गालिब मोहम्मद राजी अल असदी की क़यादत में आला सतह के एक दिफाई वफ़द ने आज इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे मजहबी और तारीख़ी ताल्लुकात पर रोशनी डाली और उन्हें दोनों ममालिक के फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान दरीना ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। उन्होंने तरबियती शोबे में इराकी फ़िज़ाइया को गैर मुतज़लज़ल हिमायत फराहम करने के लिए पाक फ़िज़ाइया के अज़्म का इआदा किया। एयर चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को यकीन दिलाया कि पाक फ़िज़ाइया इराकी फ़िज़ाइया की इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिशों में ताउन करती रहेगी। दोनों कमांडर्स ने मुश्तरका मशक़ों और तरबियती इक़दामात के इनेकाद पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसका मकसद दोनों फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान मजबूत ऑपरेशनल हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। इराकी फ़िज़ाइया के कमांडर ने पाक फ़िज़ाइया की दूरंदेश क़यादत की तारीफ़ की और तस्लीम किया कि यह खित्ते की जदीद पेशावराना और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता फ़िज़ाइया बनकर उभरी है। इराकी कमांडर ने कहा कि उनके फ़िज़ाइया पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स के तबादले के ज़रिए उनके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिशमंद है। सिंध हुकूमत असातिज़ा को तदरीस के जदीद तरीक़ों से आगाह करने की गरज से उनके लिए IA पर मबनी ऑनलाइन तरबियत का आगाज़ करेगी। इस मकसद के लिए सिंध के महकमा स्कूल एजुकेशन, यूनिसेफ और खान एकेडमी पाकिस्तान के दरमियान एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने इस मौके पर कहा कि सूबाई हुकूमत महकमा तालीम में जिद्दत और म्यार यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुआहिदे के तहत दादू, टंडवाला यार, थरपारकर और उमरकोट के तकरीबन 3,500 असातिज़ा को इस 6 माह के आजमाइशी मंसूबे में तरबियत दी जाएगी। बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और अवाम की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की गर्ज से आज सिब्बी में एक बड़ा जरगा हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफ़र खान मंदुखेल, कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ, सूबाई वज़रा और कबाइली अमायदीन ने जरगे में शिरकत की। गवर्नर बलोचिस्तान ने जरगे से खिताब करते हुए कहा कि तमाम शराकतदारों के ताउन के बगैर सूबे में तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत अमन और तरक्की यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। कमांडर 12 को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे में अमन यकीनी बनाने के लिए नौजवानों को मुस्बत मौक़े फ्राहम करती रहेंगी। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि डिजिटल यूथ हब इक़दाम नौजवानों को अपने मुस्तकबिल की तलाश के लिए मेरिट के बुनियाद पर मौक़े फ्राहम करता है। आज लाहौर में कनेट कॉलेज बराए ख़वातीन में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो इस मुनफरिद इक़दाम से फ़ायदा उठाते हुए ख़ुद को डिजिटल यूथ हब प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराएँ। ई स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान की अगले 1-1.5 माह में लॉन्च होने जा रही है। ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। ये खाली स्पोर्ट्स नहीं है कि गेम खेल ली, इसमें गेम डेवलपमेंट भी है। इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं ई स्पोर्ट्स में, वो $multi-billion की इंडस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। हर कोई जायंट बन चुका है और पाकिस्तान के बच्चों का टैलेंट इतना है कि चाहे टेकन है, चाहे और गेम्स हैं, इसके अंदर पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां लीड कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में ख़वातीन के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह खुसूसी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के क़याम के अज़्म में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। टेक्नोलॉजी पार्क ख़वातीन फ्री लांसर्स, कारोबारी अफराद और IT प्रोफेशनल्स को अहम मौक़े फ्राहम करता है। पार्क बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के निज़ाम, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और जदीद तरबियत से आरास्ता है। इसका मकसद डिजिटल मईशत का फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करके ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। इस इक़दाम से आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को समाजी इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र आसमा अंद्राबी ने कहा, The privilege to visit the Software Technology Park, first ever Software Technology Park, जो कि ख़वातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में जिसको इस्टेब्लिश किया गया। I had the privilege to visit it today and mashallah incredible work has been done. ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के
गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। एक बयान में APHC के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट के अलावा शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया इंदिराबी और नईम अहमद खान का नाम भारत की तिहाड़ जेल में बंद अफराद में शामिल है। उन्होंने खबरदार किया कि इनकी बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र रिहाई में मजीद ताख़ीर इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देगी और इंसाफ को अंधेरों में धकेलने के मुतरादिफ है। उधर जिनेवा में कश्मीरी नुमाइंदों अल्ताफ़ हुसैन वानी, शमीम शाल और एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के अमूमी मुबाहिसे के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए मकबूजा वादी में भारत के बढ़ते हुए जबर के खिलाफ फौरी बैनुल-अक़वामी मुदाख़लत का मुतालबा किया। आए गजा पर इसराइली फौज के मुसलसल हमलों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64,600 से तजावज़ कर गई है। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में T20 एशिया कप का तीसरा मैच बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान जारी है। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल दुबई में ओमान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पीर से श्रीलंका में शुरू होने वाली साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। चैंपियनशिप इस माह की 27 तारीख तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ग्रुप बी में है, जिसकी दीगर टीमें इंडिया, मालदीव और भूटान हैं। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच मंगल को भूटान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी 9वीं अल्जोनी ओलंपिक गेम्स मंगल से कराची में शुरू होंगी। गेम्स का इफ्तिताह बुराक स्पोर्ट्स के सरबराह शेख अली ज़रोनी करेंगे। पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन के सदर मकबूल आराई के मुताबिक गेम्स कराची में 3 मकामात PSP कोचिंग सेंटर, KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कश्मीर रोड और मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नाजिमाबाद में होंगी। उन्होंने बताया कि गेम्स के दौरान तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स और रोप स्किपिंग, स्कीइंग, थ्रोबॉल, रस्साकशी, केचबॉल, फिटनेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, डॉज बॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी के मुकाबले होंगे। गेम्स की इख्तितामी तकरीब इस माह की 28 तारीख को होगी। आज लाहौर में पंजाब के वजीर खेल फैसल अयूब खोखर से इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन के वफ्द और श्रीलंका के एजाज़ीज़ कौंसल जनरल यासीन जोया ने मुलाकात की। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम रेडियो बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 879 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,56,141 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1279 मिलियन से जायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 996 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज आगा स्टील लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 113 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 487 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 225 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 223 में कमी, जबकि 39 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 323 रुपये का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 107 रुपये 32 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 50 पैसे और कीमत फरोख्त 282 रुपये। पाउंड स्टर्लिंग 380 रुपये 86 पैसे, 381 रुपये 53 पैसे। यूरो 329 रुपये 33 पैसे, 329 रुपये 91 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 3 पैसे और 75 रुपये 17 पैसे। UAE दिरहम 77 रुपये 47 पैसे और 77 रुपये 60 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 91 पैसे और 1 रुपया 91 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,29,218 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 85,770 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 26,067 मीट्रिक टन बरामदी और 59,703 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
आज रावलपिंडी में खताती और फनपारों की मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद किया गया। इत्तलात और सकाफत महकमे की पार्लिमानी सेक्रेटरी शाजिया रिजवान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में नौजवान फनकारों के 80 से ज़ायद फनपारे रखे गए। कराची आर्ट्स काउंसिल 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आलमी सकाफती मेले का इनेकाद करेगी। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने बताया कि मेले में 102 मुल्कों से 800 से ज़ायद फनकार शिरकत करेंगे। मुमताज़ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने इन्हीं प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर कराची आर्ट्स काउंसिल और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कराची और लाहौर में मौसीकी की अकेडमियाँ कायम करेगी जो बच्चों को मौसीकी की तरबियत देंगी। 3 पाकिस्तानी मुख्तसर दौरानी की फिल्में 16वीं शिकागो जनूबी एशिया फिल्म मेले के लिए मुंतखब कर ली गई हैं। फिल्मी मेला इस माह की 14 से 21 तारीख तक मुनक़िद होगा। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान ने सर्विकल कैंसर के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए अपनी पहली मुल्क पापिलोमा वायरस वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया है। ये बीमारी मुल्क में खवातीन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में से एक है, जिसमें सालाना 5000 से ज्यादा नए केसेस और 3000 मौत होती हैं। सिंध में शुरू होने वाली मुहिम में इब्तदाई तौर पर 9 से 14 साल की तकरीबन 41 लाख लड़कियों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि देर से पता लगने से मौत की शरह 85% तक बढ़ जाती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन और बाकायदगी से तशखीस उसके मौसर हिफाजती इक़दाम हैं। तहकीककारों के मुताबिक जिस्म में खून की कमी कैंसर के मर्ज में इजाफे का बायस बन सकती है। एक तिब्बी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि खून की कमी हड्डियों के गुर्दे को भी तेजी से ख़त्म कर सकती है। इससे मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिससे जिस्म कैंसर से लड़ने की सलाहियत खो बैठता है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियत गुलाम मुर्तज़ा से। सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अवर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत चिलास नुकुंडी में 43 डिग्री, जबकि दालबंदी में 42 और मीर खानी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 34, मरी में 22, लाहौर में 36, कराची में 30, पेशावर में 38, कोयटा में 36, मुजफ्फराबाद में 36, गिलगित में 37, करदू में 32, श्रीनगर में 30, जम्मू में 34, लेह में 23, पुलवामा में 30, अनंतनाग में 31 और शुपियां में ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध और बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 4, किमाड़ी में 3, एयरपोर्ट ओल्ड एरिया फैसल बेस कुरंगी में 2, जिना टर्मिनल DHA फेज 2 में 1, मिठी में 2, बलोचिस्तान पसनी में 3, दसबेला में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने आज दोहा में कतर के अमीर से मुलाकात के दौरान मंगल को दोहा पर इसराइली हमले की पाकिस्तान की तरफ से पुरजोर मज़म्मत का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कतर को इसराइल की बिला जवाज इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया है। सदर ममलकत कल से चीन का 10 रोज़ा दौरा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के 19 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान और इराक ने दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया के दरमियान ऑपरेशनल ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशक़ें करने पर इत्तेफाक किया है। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद जुबैर मसूद, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद, न्यूज़ प्रोड्यूसर नसीरुल्लाह नजम, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ آصفہ محفوظ، مجاہد خان اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔